Thank you so much, sir. And before we begin with the questions related to litigation and your masters, I would like you to please introduce yourself for the audience. Well, myself, Advocate Krishan Gandhi, and I'm basically practicing in Delhi and Delhi High Court. And I have worked with very known seniors under them, and my sir was Mr. Amit Grover, sir. He was basically a panel counsel of Government of Delhi NCT, Right. and I have done my LLB from Faculty of Law LC2, and after that I have completed my LLM from Indian Law Institute. Right. So basically my areas in which I'm practicing right now is criminal law mostly. Also, I have a lot of cases of property related cases, NI Act, matrimonial. But the main domain in which I would say that I'm having a density of cases is criminal law. Right. But see, whenever you're building the practice, होता ये है रश्मि कि you cannot be selective कि आप एक ही type के cases handle करोगे. Exactly. You take whatever is coming in your way. मैं काफ़ी बात अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ. मैंने एक चीज़ अपने सीनियर से सीखी थी कि we do not choose our area. प्रैक्टिस चूजेस अस. हम चूज नहीं करते, प्रैक्टिस हमें चूज करती है. क्योंकि होता ये है कि आफ्टर लेट्स से टुडे आई एम इन द 6th ईयर ऑफ माय लिटिगेशन प्रैक्टिस. अभी मेरे पास जो काम आता है रश्मि मैं उठाता हूँ. बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, व्हाटएवर द वर्क इन एनी फील्ड, एनी गिवन फील्ड, आई यूज्ड टू टेक इट. But after let's say 4-5 more years, or I would say after 1 decade, I have to realize that okay, now if I am having 500 cases, 350 cases of that specific area. So I think I right now have to focus on that specific area of law. ये आती है इतनी जल्दी फील्ड में नहीं आती. This comes at a age of 40-45 years after 2 decades of practice. जब आपको लगता है कि अब हमें एक डोमेन सेलेक्ट करना है, तो उस एरिया के अंदर आप अपने फिर आगे लेके चलते हो. क्योंकि आप कई सीनियर एडवोकेट्स को देखो जो सिर्फ एक ही टाइप के केसेस लेते हैं. उनका एक डोमेन फिक्स है दैट दे आर इनटू बेल. Or there are some senior advocates, they are into basically questioning, they are into civil litigation, they are into writ jurisdiction. So yes, eventually it will come with time. Today I'm at that zone where I would say I'm having a plenty of criminal cases. I'm mostly into criminal trial, but I'm also open to whatever is coming my way. Right. So this is what one of my seniors also told me कि शुरू में तो वैसे ही cases नहीं आते तो आप और कैसे selective हो गए. You need to start building the Yes, practice and then eventually it will absolutely. come. Absolutely. You cannot have the ego कि I will do with this kind of cases or I will Right. do with that kind of cases. So what if I don't enjoy civil litigation? I mean, just a question as a law student कि I really like to read on criminal laws, but I don't really enjoy reading civil cases. So what do I do then? See, I mean, देखो लिटिगेशन एक ना समुंदर है. मैं आपको बात बताऊं रश्मि, अगर आपको लिटिगेशन से प्यार है ना तो आप सब कुछ कर लोगे. लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ क्रिमिनल रहोगे, ठीक है, ये पर्सनली ठीक है ये बात. परंतु अगर कमर्शियल होना है एंड आपको प्रैक्टिस बिल्ड करनी है, तो ये चीज आई थिंक वेरी डेंजरस है आपकी प्रैक्टिस बिल्ड करने के लिए. क्योंकि अगर आप कहोगे कि मैं सिविल पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सिविल का काम करूंगा ही नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे आगे. अगर आप लेट्स से क्वेश्चन का काम कर रहे हो, बेल्स कर रहे हो, आप ट्रायल कर रहे हो, एनआई एक्ट कर रहे हो, और कल को कोई केस आ गया जो आपका आई वुड से सिविल है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, एंड सिविल के अंदर बहुत अच्छा पैसा है. राइट. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, सिविल लिटिगेशन इज मोर प्रॉस्परस देन क्रिमिनल लिटिगेशन. क्योंकि जो क्रिमिनल का काम है वो 0.00001% ऑफ एडवोकेट्स पे जाता है, लेकिन सिविल का काम सब पे चलता रहता है. अब क्रिमिनल में क्या होता है रश्मि की, स्टेक्स काफी हाई होते हैं. तो जो लॉयर्स जिनकी वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, जो सीनियर्स हैं, लोग उन्हीं पे ही जाना पसंद करेंगे. अब बेल का काम है, बेल का काम इतनी इजीली नहीं आएगा एक नए लॉयर के पास. क्योंकि जो बंदा जेल में है उसको लगता है आई हैव टू कम आउट. शायद मैं पैसे थोड़े ज्यादा दे दूं, बट आई वांट श्योर शॉट, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकता. तो इसीलिए बेल का काम इतना इजीली नए लॉयर्स के पास नहीं आता. आती है तो फिर वो काफी आई वुड से कि गरीब इंसान की बेल आ गई, कोई स्लम एरिया का है, तो वो आपको फिर उस लेवल का पैसा नहीं दे पाएंगे. पर अगर आपने सिविल में भी प्रैक्टिस अच्छी बिल्ड कर ली, तो आपके प्रॉपर्टी केसेस, मैट्रिमोनियल रिलेटेड केसेस, अब मैट्रिमोनियल है, क्वासी सिविल, क्वासी क्रिमिनल है, इसमें सिविल क्रिमिनल सब चलता है. लाइक डिवोर्स इज अ सिविल, आपका 125 सीआरपीसी इज क्रिमिनल, डीवी आपका वैसे कंपेंसेशन है पर वो चलता सीआरपीसी से है, बीएनएसएस हो गया अब आपका 498 है. तो आपको सिविल और क्रिमिनल दोनों ही साथ लेके चलना पड़ेगा.
अगर आप सिर्फ सिविल लेके चलोगे, कहोगे मैं सिर्फ क्रिमिनल नहीं करूंगा, आई थिंक यू विल लैक इन योर प्रैक्टिस। और अगर आप सिर्फ क्रिमिनल करोगे, आप कंपेंसेशन पे नहीं करोगे, तो आई थिंक अगेन यू विल लैक इन योर प्रैक्टिस। Right. So you need to be interested in litigation rather than civil or criminal, यस, any particular field. बेसिकली यू नीड टू बी इंटरेस्टेड इन लिटिगेशन। So how did you find your interest in litigation? तो बेसिकली रश्मि, आई वुड से कि आई वांटेड टू परस्यू लॉ फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आई डोंट नो ये इंटरेस्ट कैसे आया। आई हैव इंक्लिनेशन टू रीड लॉ सिंस माय स्कूल डेज। Hmm. नाउ अब हुआ ये कि लेट मी टेल यू वन पर्सनल थिंग विद यू कि माय फैमिली वाज अगेंस्ट फॉर मी टू परस्यू लॉ, बिकॉज आप समझते हो आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड एक Hmm. लॉयर, उनकी एक जो इमेज बनी होती है ना माइंड में, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग I definitely कि do. आप लॉ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे अच्छा कोई इंजीनियरिंग करके जॉब कर लो, बिजनेस कर लो। उनका हाँ. माइंडसेट ये था। एंड आई वाज फोर्स्ड टू टेक साइंस इन क्लास 12, मेरे को साइंस क्लास 11th। Hmm. बट ठीक है, मैंने उसको, आई डिडंट हैड एनी इंटरेस्ट इन दैट। आई वाज वेरी गुड इन मैथ्स एंड आई वाज वेरी गुड इन केमिस्ट्री। आई लव दीज टू सब्जेक्ट्स Hmm. बेसिकली। तो हुआ ये कि अच्छे नंबर आ गए क्लास 12th में, एंड उस टाइम पे डीयू में एडमिशन मिल गया इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर। Hmm. तो व्हेन आई टुक एडमिशन इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स सत्यवती कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई वाज वेरी क्लियर कि देखो भाई, 11 12 तो रो रो के कर लिए, अभी आगे नहीं चल पाएगा, 2 साल जैसे काटे हैं। Hmm. तो I started preparing for LLB in the second year of my economics honors, and I was so dumb at that time that I was only preparing for DU LLB. मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मेरा DU में नहीं हुआ तो मैं कैसे करूंगा। एंड भगवान ने मेरा साथ भी दे दिया लकीली कि हाँ. मेरा DU क्लियर भी हो गया। तो आई वॉज एबल टू गेट एडमिशन इन LC2। एंड LC2 के 3 साल मेरी लाइफ के बहुत अच्छे 3 साल थे। मैंने काफी अच्छे से पढ़ा, काफी इंजॉय किया। माइन वॉज 2016 टू 2019 बैच, जस्ट बिफोर द कोविड लॉकडाउन, क्योंकि 2020 में तो कोविड आ गया The आपका। lucky one. तो यस, आई वाज लकी वन, आई वुड से आई एम द लकी वन। Yeah. डेस्टिनी वाज विद मी, डेस्टिनी वाज विद मी, आई वुड से दैट Yes. कि LC2 का DU के अंदर एक तो लॉ बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, Hmm. जो DU का Hmm. टोटल करिकुलम है वो बहुत अच्छा है। तो Right. मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ कि अगर किसी ने LLB करनी हो 3 साल की, तो DU इज द बेस्ट प्लेस यू कैन गो। Absolutely, no doubt about it. उसके बाद 2019 में LLB कंप्लीट हुई। आई वाज वर्किंग विद माय सीनियर एट दैट टाइम, Hmm. बट इवेंचुअली आई वाज वर्किंग एज एन जूनियर एडवोकेट एसोसिएट। 2020 में कोविड लॉकडाउन हो गया, तो मैंने कोर्ट जाना बंद कर दिया मार्च के बाद से। Hmm. मैं बिल्कुल ही मतलब घर पे ही थोड़ा बहुत सर के साथ जुड़ा रहा, ज़्यादा मैं रेगुलर नहीं था, बीइंग Hmm. वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो 2022 के अंदर आई स्टार्टेड अगेन माय लिटिगेशन प्रैक्टिस। आई अगेन जॉइंड माय सीनियर एंड आई वाज आल्सो स्टार्टेड टेकिंग माय ओन केसेस, क्योंकि मैंने बेसिक्स सीख लिए थे Hmm. कैसे करने हैं। तो आई ऑलवेज हैड अ जस्ट कि यार ठीक है, अभी मैंने कर तो रहा हूँ, बट माय स्टडीज आर नॉट कंप्लीट येट। आई Hmm. वांट टू कम डू LLM। बेसिकली मुझे पता था कि LLM तो एकेडमिक्स के लिए होती है, बट आई हैड अ जस्ट कि मेरे को अपने लिए करनी थी। आप हर बारी जो डिग्री करते हो, वो सिर्फ आप इसलिए नहीं करते कि आपको एकेडमिक्स परस्यू करना होता है, यू वांट टू डू दिस समथिंग, दैट्स व्हाई आई डिड इट। तो Okay. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर LLM, एंड लकीली 4 महीने के लिए मैं पढ़ा था LLM के अंदर। I would say from December 2022 to April 2023, I worked very hard and luckily I was able to crack ILI. And then 1 साल का ILI हुआ. Then after completing my ILI, I started my own law firm in the year of August 2024. And yes, things are going pretty well. Really nice. I mean, ILI is again one of the dream colleges for law students to pursue their masters because sometimes it is, of course, ILI has great curricular and everything, but for us students from private law universities, we want to get that tag either of NLU or a top law college because tag name value hoti hai. So ILI is बिल्कुल होती very है। important to according to that aspect as well. Right. So I'm also asking this because litigation has this financial instability in the initial years. And for students who are studying on student loan or something like they have this financial burden or the responsibility for their family, they they are very scared of taking litigation, especially because of the financial Absolutely. instability. So how can they Absolutely. find paid opportunities in the initial years and how can they navigate that difficult phase? You are very much right, Rashmi, because this is an absolute truth which you have spoken right now. लिटिगेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग है, एंड लिटिगेशन के अंदर जो दूसरी चीज आती है जो सबसे ज्यादा मैटर कर जाती है, वो होता है आपका बैकग्राउंड। आई Hmm. हैव सीन माय फ्रेंड्स
ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट हार्ड वर्किंग और दे आर नॉट टैलेंटेड, दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट, दे आर मोर हार्ड वर्किंग देन मी एंड दे आर मोर डेडिकेटेड देन मी, बट उनके साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं करता। हम्म। अब होता क्या है रश्मि कि जब आप स्टार्टिंग ईयर्स में जाते हो, आप सीनियर ज्वाइन करते हो काम सीखने के लिए, हम्म। आप चैम्बर प्रैक्टिस के अंदर आते हो, आपको 20,000, 25,000, 30,000 मिल जाता है, आप सर, साथ में अपने केसेस टेकअप बीस कर रहे हजार हो। 25,000 हियर इन छत्तीसगढ़ एंड इन मध्य प्रदेश इट्स अ लग्जरी. नॉट एवरीवन इज गेटिंग 20-25,000 ऑल्सो. दे ऑल्सो ओनली गेट द ट्रैवल एक्सपेंसेस. यू आर राइट, दिल्ली में भी ऐसे सिनेरियोज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर 100% राइट कि ऐसा होता है। 20-25,000 वहां पे उनको मिलता होगा जो काफी एक्सपीरियंस हो चुके होंगे 4-5 साल के बाद, और सीनियर के साथ पुराने हो चुके हैं। हम्म. दिल्ली के अंदर नो डाउट चीजें बेटर भी हैं, लेकिन बहुत से लोग दिल्ली में आके परस्यू करते हैं लिटिगेशन, क्योंकि दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। हम्म. बट फिर एक चीज हो जाता है कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि आप अगर घर से अलग रह रहे हो, आपके एक्सपेंसेस मतलब बढ़ जाते हैं। बिल्कुल. राइट नाउ आई एम लिविंग विद माई फैमिली, तो मेरे हाउस रेंट्स नहीं है, मेरा हम्म. टचवुड अपना ऑफिस है, तो मेरे पास उसके रेंट्स नहीं है। तो ये सब चीजों से मैं थोड़ा प्रिविलेज था, विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी दैट आई वाज एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, हम्म. तो आई वाज एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स। लेकिन आपने जैसा क्वेश्चन किया कि स्टार्टिंग कुछ ईयर्स के अंदर लोग लिटिगेशन से बचते हैं, दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड मैं भी सजेस्ट करता हूं कि देखो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप लिटिगेशन में तभी एंटर करो, सी आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, ऐसा हम्म. नहीं है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप बन ही नहीं सकते, देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स जो बाहर से आए हैं और वो आज दिल्ली में आके बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म. लेकिन जो स्ट्रगल का एस्पेक्ट हो जाता है ना रश्मि, वो पड़ जाता है, उनको 4-5 साल की एडिशनल स्ट्रगल हो जाती है। अब ये आपकी पर्सनल स्किल्स हैं, आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हो, सर के साथ आप काम कर रहे हो, वो कितने सपोर्टिव हैं, आप सीनियर के साथ लग रहे हो, आप क्लाइंट्स कैसे ला रहे हो, ये हम्म. 4-5 साल का एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाता है। बट इट्स नथिंग लाइक दैट कि आप कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब एक इंसान देखता है कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इससे बेटर मैं एकेडमिक्स को चूज कर लेता हूँ, वहां मेरे को एक स्टेबल लाइफ मिल जाएगी, 70-80 हजार में स्टार्टिंग के अंदर आ जाएगा, लिटिगेशन में कोई गारंटी नहीं है हम कितना सक्सीड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो लोग लिटिगेशन से भागते हैं। हम्म. लिटिगेशन के अंदर बैकग्राउंड मैटर कर जाता है, दिस इज अ हार्श ट्रूथ रश्मि। राइट. फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है ये मैटर करता है, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर आपके पास काम नहीं आता, लोग सोचते हैं, क्योंकि देखो लोग भी गलत नहीं है, क्लाइंट्स गलत नहीं है, उनकी लाइफ का मैटर है, उनके स्टेक्स हाँ, काफी हाई है। मतलब बहुत हाई स्टेक्स है तो वो ऑलरेडी ऑब्वियसली वो एक एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस लॉयर ज्यादा. के पास जाएंगे, अब स्टार्टिंग के अंदर आप छोटा मोटा काम लोगे, अब छोटा काम आएगा, छोटे केसेस आएंगे, उनमें पैसा उतना नहीं होगा, हम्म. तो आपको स्टार्टिंग में अगर आप उतनी ही अर्निंग कर पाओगे, बहुत लिमिटेड है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट मी शेयर वन गुड थिंग विद यू। जैसे अगर आज आप किसी एक सीनियर के साथ काम कर रहे हो, वो आपको 10-15-20 हजार रुपये दे रहे हैं, हम्म. और अगर आप थोड़ा काम सीख गए 1-2 साल सीनियर के साथ, क्योंकि वो बेसिक आपको करना जरूरी है, हम्म. उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, इंडिपेंडेंट के अंदर लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप 10-15 हजार बड़ा इजीली कमा दोगे अगर आपको काम आता है, आप स्ट्रीट स्मार्ट हो तो। होगा ये कि आप जो 30 दिन किसी सीनियर के साथ काम कर रहे हो, उतना पैसा आप सीनियर के साथ अर्न कर रहे हो, आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के ऊपर महीने में 2-4 दिन काम करके ही उतना कमा लोगे। लेकिन यहाँ पे जो एक एस्पेक्ट होता है कि कुछ महीने ऐसे होंगे जब बिल्कुल सन्नाटा होगा, कुछ नहीं आ रहा, और कुछ महीने ऐसे होंगे कि वहां पे बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी, तो एवरेजिंग उससे अच्छी हो जाएगी जितनी आपकी सैलरी आ रही है। Right. But you need to plan. And sir, एवरीथिंग। independent practice we can start in a year or so, but how can we build a clientele? I mean, एक साल में इतनी अच्छी clientele तो नहीं होगी. नहीं होगी, क्लाइंटल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको स्टार्टिंग के 4-5 साल लग जाते हैं। हम्म. अब क्लाइंटल कैसे आती है रश्मि की, आपके सोशल नेटवर्क्स, लेट्स एज्यूम आई एम लिविंग इन दिल्ली और यू आर लिविंग इन इंदौर, तो आप इंदौर में रह रहे हैं जहाँ पे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके फर्स्ट 10 ईयर्स में, इवन मेरे भी अभी जो क्लाइंटल है, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टी के साथ बताऊं, वो मेरे नोन्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पास फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, दे हम्म. आर योर क्लाइंटेज, जो आपको जानते हैं, यही स्टार्टिंग के ईयर में आपके क्लाइंटेज होते हैं। हम्म. उसके बाद जब आपके पास पहला ब्रीफ आता है, आप काम करते हो, आप अपना 100% देते हो, दे गेट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, उसके बाद आपकी रेफरिंग स्टार्ट होती है, हम्म. तो यही आपके क्लाइंटेज होते हैं, एंड रेफरिंग के लिए भी टाइम लगता है। देखो, जो सैड रियलिटी है रश्मि की, लिटिगेशन टेक्स टाइम। आपके पास एक केस आया, वो केस चलेगा 5-7-8 साल, 10 साल, हम्म. अब जब आप केस जीतोगे 5-7-8-10 साल बाद, तब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा कि ओके, दैट सो एंड सो लॉयर डिड गुड थिंग, हम्म. नाउ आई कैन रेफर हिम टू अदर पीपल। तो Right. सेकंड डेकेड के अंदर प्रैक्टिस की आपकी रेफरिंग स्टार्ट हो जाती है।
Right, sir. Sir, but uh, I'm sorry, you're योर going. कनेक्शंस मैटर्स अ लॉट। आपके कनेक्शंस कैसे हैं, नेटवर्किंग कैसी है, आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो। इफ यू हैव गुड कनेक्शंस, यू हैव गुड पॉलिटिकल कनेक्शंस, गुड बिजनेस कनेक्शंस, जो आपके कनेक्शंस है वही आपके क्लाइंटेज है। So I think it is always better to start in your hometown if you have like एब्सोल्युटली, an option there, or एब्सोल्युटली, where you have good connections, maybe your the city where you have studied your law, or place where you have good connections, family. It's always better to start from there. एब्सोल्युटली रश्मि, इट्स एब्सोल्युटली वेरी नाइस टू स्टार्ट इन योर होम टाउन बिकॉज पीपल नो यू। अब Right. आप इंदौर से दिल्ली आओगे, आपको 4-5 साल तो लोगों को जान पहचान बनाने में ही लग जाएंगे। मैं Right. इंदौर आऊंगा दिल्ली से, वहां मेरे को कोई नहीं जानता, तो मेरे को 5 साल अपने कनेक्शंस बिल्ड करने में ही लग जाएंगे। Hmm. स्टिल लोग आप पे उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे जितना वो एक लोकल इंसान पे ट्रस्ट करेंगे, Hmm. क्योंकि उन्हें लगता है कि एक लोकल है हमारा, एक कनेक्शन आ जाता है, इसकी फैमिली को हम 25 साल से जानते हैं, 30 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, उसकी बिल्कुल. पेरेंट्स को जानते हैं, फोर फादर्स को जानते हैं। तो इस वजह से कनेक्शन आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भागेगा नहीं। अब Hmm. कल को मैं इंदौर आके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोग मुझे नहीं जानते हैं, उन्हें लगता है दिल्ली का है, पता नहीं कल है परसों है नहीं है, हमारे Hmm. केस लेके भाग जाए, हमारा काम ना करे ढंग से। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट इन योर होम टाउन। लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरा एस्पेक्ट आता है कि आपके होम टाउन में अपॉर्चुनिटीज कितनी है। इफ Hmm. यू आर लिविंग इन सम रिमोट एरियाज और अ विलेज, वहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अब उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बाहर आना ही पड़ेगा। तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन बाय कैलकुलेटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। Right. So I was speaking to one of the advocates, yeah, Kodbake, who is practicing in the district courts. So I asked him, sir, यहाँ तो limited opportunities हैं, cases भी दिन के 2 4 5 ही चलते हैं. He said, I don't do cases of just this district, and I'm working in 4 different districts. I travel like Monday fixed day कि यहाँ करेंगे, Tuesday यहाँ करेंगे, Wednesday यहाँ करेंगे. So you have to build a practice like that if you want to live in a like a smaller city or smaller town. But if you're living in let's say Delhi or Indore, or a place where they have high courts and district courts, then you can build your practice around that area only. एब्सोल्युटली रश्मि, होता क्या है मैं आपको दिल्ली में भी बताऊं, जैसे यहाँ पे 7 कोर्ट्स हैं। अब Hmm. मेरा क्या है कि मंडे को मैं रोहिणी कोर्ट के मैटर देखता हूँ, Hmm. ट्यूसडे को मैं तीसरी के मैटर फिक्स कर रखे हैं, वेडनेसडे को मैंने द्वारका कोर्ट के मैटर फिक्स कर रखे हैं। तो हम एक डे फिक्स कर लेते हैं कि अगर मैंने मंडे को रोहिणी कोर्ट जाना है तो मैं सारे मैटर रोहिणी कोर्ट के ही मंडे हैंडल करूंगा। Hmm. और मैं कोर्ट के अंदर जब डेट लग रही होती है, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि एनी मंडे इफ आई एम इन रोहिणी कोर्ट और एनी ट्यूसडे इन 30 कोर्ट। तो मेरे Right. को वो डेट्स मिल जाती है, सामने वाली काउंसिल भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है मोस्टली। तो ये But फिक्स हर कोई लॉजिक लिटिगेशन प्रैक्टिस के बाद बिल्ड अप हो जाती है कि आपके पास सर ये 20 हाई केस है। कोर्ट में तो नहीं हो पाता होगा. आई थिंक हाई कोर्ट के अंदर भी हो जाता है, अगर आप रिक्वेस्ट कर दो तो कोर्ट मास्टर साहब से वो कर लेते हैं बात। तो Okay. सी एवरीथिंग वर्क्स। लेकिन अगर अर्जेंसी ऑफ द मैटर है तो आपके पास टीम होती है हैंडल करने के लिए, जैसे आपकी बेल लग गई और कई बार नहीं हो पा रहा, तो ऑल्सो यू नीड अ गुड टीम। आपके जूनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कि लेट्स से अगर मैं नहीं जा पा रहा तो मेरा कोई जूनियर एसोसिएट चला जाएगा, या कोई Hmm. मेरा दूसरा दोस्त लिटिगेशन चला जाएगा। तो Hmm. ये सब चीजें आपको एक साल कुछ सालों की लिटिगेशन प्रैक्टिस के बाद करनी पड़ती हैं। Right. मतलब initial years, so if no matter what your background is, no matter if you have financial responsibility or not, you have to give in and 110%। survive those difficult years, and then only you can flourish in litigation. एब्सोल्युटली। एंड लिटिगेशन एक ऐसी चीज है ना रश्मि, की मैं आपको बताऊं, ये कंसिस्टेंसी वाली चीज है, ये खरगोश की रेस नहीं है, ये कछुए की रेस है। Hmm. ये आप एक दिन भाग गए और सो गए प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले, आप नहीं जीतोगे। ये है कि आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी और डेली बेस पे करनी पड़ेगी, Right. और आपको डेली ही इनपुट देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी 100% काम नहीं करता। आई सी सीनियर एडवोकेट्स वर्किंग वेरी हार्ड। मेरे पास तो बहुत टाइम होता है, और मुझे एक चीज रियलाइज हो रही है कि जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस बिल्डअप हो रही है, मेरा टाइम कम हो रहा है, Hmm. फैमिली टाइम कम हो रहा है, मेरा अपना टाइम कम हो रहा है, क्योंकि मेरे पास काम आ रहा है। एंड Hmm. एब्सोल्युटली वी वर्क सो हार्ड टू कम एट दिस प्लेटफॉर्म ओनली। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके पास काम आता रहता है, and आपका हार्ड वर्क उतना ही बढ़ता रहता है। Right. So, इफ यू वांट टू स्टे एट द टॉप देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। absolutely. Sir, आपने mention किया कि you did LLM for your own satisfaction and gathering knowledge, but is it helping you in litigation as well? Connections या कुछ और चीजें? सी 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 लेट मी बी वेरी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब मैंने एलएलएम किया, मैंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से एलएलएम किया, तो हम्म. उसका जो मेरे पास एक बेनिफिट हुआ कि क्लाइंटेज मेरी अच्छी हुई। हम्म. नाउ व्हाट हैपेंस दैट कि
लोग इंडिया की जो सैड रियलिटी दूसरी है कि लोग सिर्फ डिग्री के पीछे भागते हैं, लाइक यू मेंशन इन द वेरी स्टार्टिंग की एनएलयू उसका टैग। अब बहुत से लॉयर्स हैं जिन्होंने एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रखी है, हम्म। मेरे से हजार गुना अच्छे लॉयर्स हैं वो। हम्म। ऐसा नहीं है उन्हें लिटिगेशन नहीं आती, बट उनके पास एक वो इन्वायरमेंटल शिफ्ट नहीं आ, एक टैग नहीं रहा, एक ब्रांड नेम नहीं रहा। हम्म। And I think this ब्रांड, matters even more in corporate jobs than in litigation. I don't know about यस, litigation because कॉर्पोरेट्स तो ज्यादा करता है। I have not seen people come and ask कि आपने कहाँ से की है law. At least in my limited internship experience, I have not seen people do that. But in corporate, लोगों it को नहीं matters. पता लगता, लोग पूछते नहीं है, लेकिन लोगों को ना एक लगता है, जो मैंने एलएलएम करने के बाद नोटिस किया है कि जब मैं अपने बिजनेस कार्ड में लिखा हुआ हूँ कि एलएलबी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एलएलएम फ्रॉम इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, तो लोगों को लगता है कि एक मेरिटोरियस लॉयर है, से काम आता होगा। हाँ, they do judge उन्हें you एक the माइंड basis सेट of जाता that. है कि ये अच्छी जगह से करके आया हुआ है, नकली डिग्री लेके नहीं बैठा हुआ, उन्हें ये चीज लगती है। दूसरी चीज क्या है, उसके बाद तो आपकी परफॉर्मेंस मैटर कर जाती है कि आप कैसा अच्छा रिजल्ट ला के दे रहे हो। इट्स अ हम्म। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशन बेसिकली। अब दूसरी चीज रश्मि, जो आपने बताया अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए, मेरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट काफी स्ट्रांग हुआ। मैंने थ्योरी पढ़ी एक साल, तो मेरा वो स्ट्रांग हुआ। नो डाउट उसका लिटिगेशन के अंदर इतना हेल्पफुल नहीं हुआ। नेटवर्किंग एंड क्लाइंट्स, इस जोन में जरूर बेनिफिट हुआ। ओके। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर बेसिकली आपको एलएलएम इज फॉर academic, एकेडमिक्स। हाँ मतलब बट ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एकेडमिक्स में हेल्प करेगा. इफ यू आर डूइंग इट, नॉलेज इज नेवर वेस्टेड एंड परस्यूइंग एन एक्स्ट्रा डिग्री इज नेवर वेस्टेड. सी नॉलेज नेवर गोज इन वेन। आपका राइट. हार्डवर्क कभी यूजलेस नहीं जाता, आपने जो मेहनत करी है वो कहीं ना कहीं काम आती ही आती है। बिल्कुल. बट अब मेरा गोल क्लियर है कि मैंने इसके बाद कोई पीएचडी वगैरह नहीं करनी, कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं करना। आई ओनली हैव टू परस्यू लिटिगेशन। हम्म. मेरी मास्टर्स हो गई इन लॉ, इन क्रिमिनल लॉ, दैट इज फाइन। अब एक बेनिफिट मेरे पास और था रश्मि की, द एलएलबी की जो डिग्री थी, ये सिर्फ 9 महीने की थी। हम्म. 9 महीने कॉलेज जाना था, एंड एक साल के अंदर टोटल वाइंड अप हो जाता। हम्म. एक बहुत छोटे टाइम के अंदर मेरे को एक लाइफ टाइम की डिग्री मिल गई। बिल्कुल. आज मैं 70 साल की एज के अंदर भी मेरे पास एलएलएम की डिग्री रहेगी रहेगी, मेरे पास लाइफ टाइम का टैग लग गया कि आई डन एलएलएम। तो हम्म. 7 8 9 महीने दे के साथ साथ आप लिटिगेशन भी, आप मेरे दोस्त हैंडल कर रहे थे जो मेरे केसेस थे, क्योंकि यू कैन नॉट परस्यू लिटिगेशन एंड मास्टर्स ऑल टुगेदर, सो आई वाज नॉट अलाउड टू गो टू कोर्ट इन दैट 1 year स्पैन। सो यू आर जो मेरे नॉट केसेस थे, अलाउड टू. यस, यू आर नॉट अलाउड टू गो टू कोर्ट। एलएलएम आईएलआई का एक रूल है, आप अच्छा. कोर्ट जाके अपीयरेंस नहीं, कोर्ट आप जा सकते हो, बट यू कैन नॉट अपीयर, यू कैन नॉट परस्यू लिटिगेशन इन दैट 1 year स्पैन। So it अब is हुआ for ये, ILI and not for other colleges because I've seen आई people go थिंक to courts. इट्स फॉर आईएलआई, बट आई डू नॉट नो मच अबाउट अदर्स कॉलेज, बिकॉज Okay. आई बिलीव एमआईटी वगैरह के अंदर कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो लिटिगेशन भी कर रहे हैं साथ में। हाँ बट मतलब I've आईएलआई seen के अंदर आपसे almost बॉन्ड people. भरवाते हैं, यू कैन नॉट डू लिटिगेशन। सो एक साल मैंने लिटिगेशन बिल्कुल नहीं करी, कोर्ट अपीयरेंस नहीं थी। Hmm. नाउ व्हाट हैपेंड दैट जो मेरे केसेस थे उसमें सारे मेरे दोस्त वगैरह चले गए, मैंने अपने वकालतनामा विड्रॉ कर लिए थे। आफ्टर दैट आई केम बैक टू हैंडल माई अगेन अगेन टू Hmm. हैंडल माई ओन केसेस। तो एक साल लिटिगेशन का गैप जरूर रहा, बट थैंक थैंकफुली कि मेरी जो टीम है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, दे वर वेरी हेल्पफुल इन दैट 1 year स्पैन। उन्होंने काफ़ी अच्छी मेरी केसेस को अच्छे तरीके से हैंडल किया, तो दैट वाज नॉट एन इशू फॉर मी। बट एक चीज़ मैं नोटिस करूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी फ्लरिश कर रही है, आपने 5 6 7 साल प्रैक्टिस को बिल्डअप कर दिए, और अगर आपको लग रहा है कि अब मैं एलएलएम करूँ, कोई सेंस नहीं है। आप एक साल बिल्ड करोगे, आपकी जो लिटिगेशन में अर्निंग होगी वो भी कॉस्ट होगी। तो आई वुड से कि एक साल लिटिगेशन में एलएलएम करना, लिटिगेशन छोड़ के एलएलएम करना, एक एस्टेब्लिश लॉयर के लिए कोई सेंस नहीं बनाता। अगर आप बिगिनिंग के करियर में हो तो आप कर लो। Okay. So I mean just LLB खत्म करके सीधा LLM करना is preferable instead of going to gain some practice and then come back to सी सी sure. अगर आप एलएलबी करके एलएलएम कर लो तो इट वुड बी फार बेटर। Hmm. लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप, जो मेरी सजेशन रहती है सबको, आप एलएलबी करो, या तो आपने एलएलबी के दौरान बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी हो, आप क्लियर हो जाओगे मेरे को एडवोकेसी करनी है कि नहीं करनी। Right. एलएलबी करने के बाद आप एक साल तक एलएलएम कर प्रैक्टिस करो, लिटिगेशन करो, अच्छा. आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाएगा। एक साल बहुत है, 6 महीने भी कर लो तो भी बहुत है। Hmm. लेकिन वो 6 महीने या एक साल आपका 100% होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 4 दिन जा रहे हो, एक दिन 2 दिन नहीं जा रहे हो। आप सुबह, जब कोर्ट खुला है सुबह 10 बजे आप कोर्ट होने चाहिए, और 4 बजे आप घर आओ। 5 6 बजे, 4 बजे आप कोर्ट से निकलो, अपने ऑफिस से आप शाम तक घर आओ। वो 6 महीने अगर आप 100% दे रहे हो उस तरीके से, तब आप 100% क्लियर हो जाओगे रश्मि की आपको क्या करना है, Hmm. कि लिटिगेशन इज मेड फॉर यू और इट इज नॉट मेड फॉर यू। Right. आपको पता लग जाएगा कि मेरे को एकेडमिक्स में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, क्या करना है, जुडिशरी प्रिपरेशन करनी है। मोस्टली एलएलएम मेरे वो दोस्त कर रहे हैं जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे।
अब जुडिशरी गारंटेड नहीं है कि क्लियर होगी या नहीं होगी, हम्म लेकिन अगर जुडिशरी क्लियर नहीं हुई तो कोई ना कोई जॉब तो चाहिए। हम्म देन दे वांट कि एकेडमिक्स एक बैकअप लेके चलते हैं। हम्म दैट्स व्हाई दे वर डूइंग एलएलएम। अब लिटिगेशन, आई वुड से अगेन, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। बहुत मुश्किल है लिटिगेशन करना। राइट लिटिगेशन के अंदर सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करती, बहुत सी चीजें मैटर कर जाती है। तो राइट दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि आप देख लो, जैसे ये सब रश्मि, इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल कॉल। सबकी अपनी सिचुएशंस होती हैं, हर कोई बंदा डिफरेंटली प्लेस है, एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसके हिसाब से बंदा डिसीजन लेता है। Right. So we just need to. So what I'm doing, what I'm trying to do with Beyond the Brief and asking these questions is, I just need to put out perspectives कि इतनी सारी चीजें हैं. Now you think आपके साथ क्या permutation combinations है, क्या background है, क्या situations, and then you can choose. So these are the options, these are the possible outcomes which people are experiencing through their whatever journey they've had, and now you can decide for your own. So like I said, एब्सोल्युटली। you did your LLM after 2 3 years and it worked well for you. Now people can pursue litigation for a year and then they can go for LLM. This is also an option. यस, इट्स ऑल एवरीवन्स इंडिविजुअल एस्पेक्ट। And then people can directly go for LLM after LLB. नो So, प्रॉब्लम। आई हैव सीन पीपल जो लिटिगेशन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो एकेडमिक्स में आना चाह रहे हैं 5 6 साल बाद, वो hmm, एलएलबी की एलएलएम की डिग्री ले रहे हैं ताकि वो एकेडमिक्स कर पाए, क्योंकि लिटिगेशन से बहुत से लोग कुछ सालों बाद बैक विड्रॉ कर लेते हैं, बैकआउट कर जाते हैं, hmm, लिटिगेशन नहीं चलती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, फैमिली होती है, तो हर बंदा नहीं कर पाता लिटिगेशन। क्योंकि लिटिगेशन के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि हर कोई अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि फिर आपके सर्कमस्टांस मैटर कर ही जाते हैं। तो right. लेकिन अब आप एलएलएम करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने एकेडमिक्स में ही जाना है या मैंने कॉर्पोरेट में जाना है, तो आप एलएलबी के बाद ही एलएलएम कर लो। Hmm. लिटिगेशन की एलएलएम कंपलसरी नहीं है। आप बिना एलएलएम के अंदर भी बहुत सारे लॉयर्स हैं जिन्होंने एलएलएम नहीं कर रखी, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट। देयर आर सीनियर एडवोकेट्स जिन्होंने एलएलएम नहीं कर रखी, दे आर आल्सो डूइंग वेरी ग्रेट। Hmm. Sir, but litigation में अगर if a person who wants to have a work life balance per se, कि भाई मेरे को तो अपने हॉबीज को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, देन वर्क भी करना, सो आई डोंट थिंक लिटिगेशन इज वेल सूटेड फॉर देम, or is it? एब्सोल्युटली, इट्स नॉट फॉर यू। इफ यू वांट वर्क लाइफ बैलेंस, डू नॉट कम इन लिटिगेशन। But they say, so I asked this question to one of my seniors when I was interning there, and sir told me, बेटा लिटिगेशन सिर्फ 240 days वर्किंग होता है, 120 days का वेकेशन होता है, और कौन सी जॉब में होता है ऐसा. सो इट्स लाइक फेयर पॉइंट बट. मैं आपको एक अदर एस्पेक्ट बताता हूँ। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है कि जब आपके पास काम आता है ना अर्जेंसी के साथ, लेट्स से बेल आ गया, हम्म या फिर अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक केस आया था, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स आ गए थे, एक हस्बैंड की साइड से मैं केस लड़ रहा था हम्म प्रोटेक्शन, तो उसकी वाइफ ने उस पर डीवी डाल दिया एंड ही गॉट एक्स पार्टी रेजिडेंस राइट। तो उसे हमने चैलेंज करना था, हमने मजिस्ट्रेट पे गए। ही वॉज टोटली इन टू पैनिक, उसने कहा इसको जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन लगाओ, हम्म एंड ही वॉज बिहाइंड माई लाइफ कि सर इसको करो करो करो, 2 दिन में मेरे को ये चाहिए, आई एम हाँ, टोटली स्ट्रेसफुल। तो क्लाइंट्स ऐसे हो जाते हैं। अब बेल है, बंदा जेल में है, या एंटीस्पेक्ट्री लगानी है, आपको रात के 1 बजे भी बैठ के प्रिपेयर करनी पड़ेगी। हम्म डिपेंड करता है अर्जेंसी कैसी है। अगर आप जो बेसिकली इनटू बेल के काम करते हैं, जिनके पास सिविल का काम है, वो कह सकते हैं कि हमारी वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि सिविल में ऐसा है कि आपके पास लॉन्ग बहुत टाइम होता है, हम्म आपके पास 4 महीने की डेट है, आराम से आप कर सकते हो। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होता, वहाँ अर्जेंसी ज़्यादा है, स्पेशली इनटू बेल। तो ये चीज़ मैटर कर जाती है कि आपके पास लाइक डॉक्टर्स है, हम्म आप डॉक्टर्स का भी प्रोफेशन देखो, कोई मरीज रात को आ रहा है तो मना उनको नहीं हैंडल कर करना सकते. पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की प्रैक्टिस में हो। अब आप कॉर्पोरेट में हो तो कॉर्पोरेट में तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, बट आई नो माई फ्रेंड्स हु आर इनटू कॉर्पोरेट लॉ, दे आर वर्किंग टिल लेट नाइट। राइट, कॉर्पोरेट उनको तो आई पे हैव स्केल हर्ड अच्छा मिल जाता है, फ्रॉम पे स्केल मेनी नो पीपल डाउट अच्छा कि है। it's very toxic. I mean, this is, I have Very not toxic. experienced corporate law ka environment. I was never interested in that area, so I never interned in those offices. But the professionals who I've spoken to on Beyond the Brief and otherwise, they've told me कि corporate, they're doing it for some years and then eventually they'll shift. This is what होता most क्या है ना, people इसका do. एक बैकड्रॉप क्या होता है रश्मि, जब आप कुछ साल कर लेते हो ना, तो आपकी एक बहुत अच्छी जॉब हो जाती है, आपको लगता है 1 लाख 2 लाख रुपए मेरे पास महीना सैलरी आ रही है। Hmm. अब जब आपको 1 लाख 2 लाख महीना सैलरी आ रही है, आप उसको क्विट नहीं कर पाते, वो एक ट्रैप में फंस जाते हो आप। Hmm. आपको लगता है कि चलो मैं इसको छोड़ूंगा तो फिर क्या करूंगा, मैं तो Hmm. जीरो पे आ जाऊंगा या 10,000 20,000 महीने पे आ जाऊंगा। तो आपको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एडेड होती हैं, Hmm. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लोन्स हो जाते हैं, रेंट्स हो जाते हैं, ईएमआईज हो जाते हैं, तो उसको छोड़ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
That's why most of the people are doing corporate jobs. They are mostly टॉक्सिक वर्क कल्चर, कोई वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है वहां पे. Hmm. तो ये चीज है, बट स्टिल आई नो लिमिटेड फ्रेंड्स हु आर एंजॉयिंग दैट. लिमिटेड पीपल आल्सो एंजॉय दैट थिंग. Okay. अब जो एंजॉय कर रहा है तो उसको तो कंटिन्यू करना ही चाहिए, आई बिलीव. So I would now want to dive into the preparation of the ILI preparation entrance exam, because it has only few seats, I think, some 40 or 41 seats last I checked. 46 47 सीट्स टोटल. Yeah. मतलब इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 17 या 18 ही बचती हैं Right. बेसिक. अब अनरिजर्व्ड के अंदर भी क्या होता है, वो ओपन कैटेगरी होती है. तो एनीवन हु इज कमिंग इनटू दैट मेरिट कैन कम इवन Right. इफ ही इज फ्रॉम द कैटेगरी. Right. अब तो जो बेसिकली जो जनरल हो जाते हैं विदाउट हैविंग एनी रिजर्वेशन, वो 12 13 ही बचते हैं. तो अब क्या होता है, इट्स अ वेरी नेक टू नेक कंपटीशन, वेरी नेक टू नेक Hmm. कंपटीशन, वेरी हार्ड. तो आप आईएलआई के अंदर कैसे क्रैक करना है अगर मैं आपको बताऊं. देखो, जो आप आईएलआई क्रैक करना है, सबसे पहले आप आईएलआई का सिलेबस उठा के देखो. 10 सब्जेक्ट्स आते हैं. Hmm. कॉन्स्टिट्यूशनल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्पेसिफिक रिलीफ, टॉर्ट्स, आईपीसी, अब शायद बीएनएस हो गया हो तो मुझे नहीं पता, Hmm. एंड कॉन्ट्रैक्ट. Yes. ये 7 8 10 सब्जेक्ट आते हैं, आप देखो. Hmm. उसको करने के बाद जब आप ये 10 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, तो अनदर थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्टार्ट मेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस पेपर. प्रैक्टिस पेपर उठाओ, जितने कर सकते हो करो. लास्ट ईयर की कट ऑफ रियलाइज करो कि कितनी कट ऑफ गई है लास्ट ईयर में. अगर आप लास्ट ईयर की सब अवेलेबल है नेट पे, Hmm. आपको लगता है कि लास्ट की कट ऑफ लेट से 140 गई है, Hmm. एंड मैं जो पेपर लगा रहा हूँ उसके अंदर मेरे 110 लग रहे हैं, 112 लग रहे हैं, अपने आप से ऑनेस्ट रहो. पेपर लगा के देखो, खुद चेक करो गलत हो रहा है सही हो रहा है, प्रॉपर मार्किंग करो. Hmm. दैट्स माई वे, मैं ऐसे ही करता हूँ. और लक भी मैटर कर जाता है लास्ट के अंदर यार, कहीं ना कहीं. क्योंकि ऐसा नहीं था कि जो 2 4 नंबर से रह गए उनके स्किल्स कम थी या जो हम कर गए. Hmm. इट वॉज sheer hard work. So it was also the help of luck. Hmm. लक की हेल्प के अंदर Luck ऐसा plays नहीं a है ना. huge factor. सामने कुछ बच्चे आधे नंबर से रहे हैं, मेरा शायद एक क्वेश्चन गलत लग जाता तो मैं उनकी जगह हो जाता. Hmm. इट लक ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन ऑल सच एग्जाम्स. बट अपना 100% दो. एंड ठीक है यार, अगर हो गया तो भी ठीक है. इतने ज़्यादा स्टेक्स हाई रख के मत चलना कि अगर आई नहीं हुआ तो लाइफ का एंड हो जाएगा, ऐसा कुछ मत चलना. मैं तुम्हें एक बहुत जेन्युइन बताता हूँ, आई एक अच्छा कॉलेज है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Hmm. इससे भी अच्छी है दुनिया में. मैं आईएलआई सोच के गया था, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, ये होगा वो होगा. एक डिग्री मिली, अच्छा लगा. बट नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, इतना कुछ नहीं लगता कि अगर ये ना होता तो शायद आज जिंदगी खत्म हो जाती, या इसके बिना ही सब कुछ हो जाता. हम चीजें मेंटल में माइंड में बना लेते हैं ना ज्यादा. Hmm. ये प्रॉब्लम. आप करो, नो डाउट आईएलआई से अगर आप करोगे तो फिर आप 4 5 कॉलेज प्रेफर करना, डीयू, एनएलयू, कहीं Hmm. पे भी आपका कहीं तो हो ही जाएगा. देखो, Hmm. अगर आपने मेहनत करी है, अच्छे से करी है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपका आईएलआई ना हुआ तो डीयू हो जाएगा, एनएलयू हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. Right. मैं 100% श्योर हूँ. So CLAT PG के लिए तो a lot of students take coachings. Would you suggest the same for ILI? या फिर आप ये suggest करेंगे कि एक common course ले लें and then we study, तो क्योंकि syllabus तो almost same होता है सबका. देखो, मैंने कोचिंग अटेंड करी थी. माय फ्रेंड, ही यूज्ड टू टेक क्लासेस फॉर एलएलएम प्रिपरेशन. नाउ ही इज पोस्टेड एज सिविल जज इन उत्तराखंड, ये आई थिंक उत्तर प्रदेश. हम्म. उसने यूपी क्लियर कर लिया. तो हुआ कि उसने मेरे को नोट्स अच्छे दे दिए. उसके नोट्स मेरे लिए काफी हेल्पफुल हो गए. उसके नोट से मैंने आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस कर लिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया. हम्म. ये मेरे को काफी हेल्प कर गया इसके अंदर. उसके बाद जो आईपीसी वगैरह था वो मैं बेरेट से करता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करता था. Okay. एंड सब्जेक्टिव के अंदर आप करो. सब्जेक्टिव भी बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है उन्हीं की डेप्थ में ही पूछा जाता है. Okay. तो So आपको पास. subjective question. So can you please explain the pattern of this paper? I mean, subjective, objective और interview क्या होता है? Basically What's it's the whole divided process? into 4 part. The first 40 marks is again divided into 2 parts. The first 20 marks is for GK, dead GK, or current affairs. Another is for English. I'm not right. 20, I'm not recalling it. मेरे ख्याल से शायद इतना ही है. 20 marks is for English, synonym and tonym इस टाइप से, fill in the blanks टाइप आपकी इंग्लिश चेक होती है. Now the 100 number is for your law. 40 number is for subjective. ये सारे Written होता objective questions होते हैं. है. यस, 140 इज फॉर ऑब्जेक्टिव. अब अगर आपकी डेट जीके अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप उन 40 में अच्छा स्कोर कर सकते हो. हम्म. मैं थोड़ा वीक था इंग्लिश के अंदर, तो मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी उस टाइम पे. मेरी अबव एवरेज नंबर उस पार्ट में आ गए. लॉ हम्म. का पोर्शन में बहुत अच्छा गया था. हम्म.
आफ्टर दैट सब्जेक्टिव के अंदर आई टॉप्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम, मेरे सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा आए थे। सब्जेक्टिव वाज काफ़ी अच्छा निकल गया एंड उसी की वजह से मेरा क्लियर हो पाया। हम्म। तो सब्जेक्टिव मेरा निकला एंड देन आई स्कोर समथिंग अराउंड 12 इन दैट इंटरव्यू। आई वाज 10th, माई रैंक वाज 10th इन जनरल कैटेगरी। इनिशियली मेरी 10th रैंक आई थी, बट जो ओवरऑल रैंक थी मेरी 30 हो गई, क्योंकि उससे पहले फिर आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग क्राइटेरिया। आपके आ जाते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी से होते हैं। तो हम्म। आई स्कोर 13th इन द ओवरऑल कैटेगरी। बट ये यार, आप अगर पीछे मुड़ के देखो, अगर मैं आपसे एक एज अ फ्रेंड बात करूं, तो अगर आज मेरे को वो पेपर दोबारा करना हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट वो राइट। एक फ्लो था, एक हाँ। मोमेंटम सही थी, हो गया। राइट टाइम राइट प्लेस राइट पीपल वाली चीज हो गई। तो बस लक भी साथ दे गया, हम्म। अगर मैं आपको बताऊं। बस हो गया, क्योंकि मैंने फिर एलएलएम के अंदर भी एक और बेवकूफ़ी करी जो मैंने एलएलएम एलएलबी में करी थी। मैंने सिर्फ एल आईएलआई का ही पेपर दिया। मैंने और कोई पेपर ही नहीं दिया। मैं डीयू के पेपर के लिए मैंने फॉर्म भरा था, बट आईएलआई का पेपर मैं देख के आया, मुझे लगा था यार ये तो हो वो हो जाएगा। गया। आई सो यू आई डिड नॉट मिस जज योरसेल्फ ना, आपको पता था आपका अच्छा गया, हो गया। सो वाज लाइक ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो गया। तो हम्म। उसके बाद डीयू का पेपर आया। उस टाइम पे मेरे एंट्रेंस वगैरह क्लियर हो चुके थे, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने कहा ठीक है, कि नहीं हुआ तो मैं नहीं करने वाला, मैं हम्म। कुछ और करूंगा, मेरे से अब दोबारा नहीं हो पाएगा ये पढ़ाई। तो आई वाज लाइक ठीक है, करो इसको। एक ही एग्जाम दिया आईएलआई का। एंड आईएलआई की भी एक फनी स्टोरी थी, अगर मैं आपसे शेयर करूं। राइट। तो आई अर्लियर फोकसिंग अपॉन डीयू 3 इयर्स, क्योंकि हम्म। डीयू 3 के लिए होता क्या है कि आप प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हो। मैं वेरी मच क्लियर था कि करनी मैंने प्रैक्टिस ही है। हम्म। अब इन दिस ईयर इन 2023 समथिंग अराउंड 15 अप्रैल और 16 अप्रैल आईएलआई के फॉर्म आए। आई वाज लाइक ये 2,500 का फॉर्म है, पता नहीं भरूं ना भरूं, इतना महंगा फॉर्म है, क्यों फीस क्यों भरनी। तो मैंने लास्ट सबमिशन होने से 2-3 दिन पहले 21 अप्रैल को फॉर्म बनता, मैंने 19 अप्रैल को फॉर्म भरा। मैंने कहा चल भर देते हैं, कोई बात, लेट इट बी। फिर किसी ने मेरे को बोला कि यार एक काम करो, ये आईएलआई में 9 महीने की एंट्रेंस एलएलबी है, 1 साल में निपट जाओगे, उसको आराम से आप प्रैक्टिस करो, 1 साल में करो आप। हम्म। हुआ ये कि मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डीयू के लिए हो गई थी। डीयू का सिलेबस काफी वास्ट है, आईएलआई से, आईएलआई का लिमिटेड है। हम्म। तो 15-20 दिन मैंने कहा सिर्फ अब आईएलआई को फोकस करते हैं। मेरा आईएलआई का मन ही 20 अप्रैल के आसपास बना हम्म। करने का। एंड एंट्रेंस वाला अराउंड समथिंग अराउंड 18 मई, सॉरी 8 मई। तो हम्म। 18 दिन का था। वो 18 दिन मैंने बहुत मेहनत करी, सब कुछ। दिन में मैं 12-12 14-14 घंटे पढ़ा हूँ 18 दिन, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि सिलेबस हो गया था। सिलेबस होने के बाद रिकॉल करा, समरी करा। तो हम्म। अब वो लकीली क्लियर हो गया। एंड वो बस 18 दिन की मेहनत थी कि जिस वजह से मैं आईएलआई निकाल पाया। तो वो लेकिन उससे 18 दिन की पहले तो आईएलआई, बट आपका बेस रेडी था बिफोर दैट, सो इट गेव एन एडेड एडवांटेज। दिसंबर 22 से 4 महीने से पढ़ रहा था। हाँ, इट सिलेबस वॉज में एन सारा एडेड एडवांटेज कि आपने 18 डेज फुल 110% दे दिया। सो 200%। वो 18 डेज में पता है मैंने क्या दिया था, मतलब आई वॉज टोटली फोकस्ड। मेरे को फिर उस टाइम पे इवन सब कुछ छोड़ दिया था। आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि मैंने कब खाना खाना है, कब सोना है, बस मैं पढ़ रहा था उन 18 दिनों। एंड उन 18 दिन से मेरा फिर वो क्लियर हुआ, मैं अगर आज सही बताऊं तो। how was the experience, sir? And if I can ask you, ki, sir, what is the overall expense for pursuing an LLM from ILI? आईएलआई की फीस थी हमारे टाइम पे 1.5 लाख रुपए। हम्म। लेकिन अगर साथ में एक्सपेंसेस लगा लूं, तो आपका 5-7 हजार 10 हजार महीना और भी खर्च हो जाता है, ट्रैवल कॉस्ट वो वगैरह, तो खाना पीना। हाँ, मतलब कहीं पे भी होगा बेसिक कुछ। 5-7 हजार आ जाता है। तो अगर आप दिल्ली से हो तो मेरे को रेंट्स नहीं दे रहे थे, मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ, तो मेरा अपना घर था, तो वो माइनस हो गया। तो बेसिकली अगर मैं 1.5 लाख फीस प्लस 10 हजार पर मंथ ये लगाऊं, तो 2.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली आसपास ये गया। फीस, रेंट, ट्रांसपोर्ट, 2.5 लाख रुपए ये हो गया। लेकिन जो मेरे साथ एक एडिशनल कॉस्ट हुई, वो ये रही कि मेरी लिटिगेशन जो हुई वो छूटी थोड़े टाइम। तो हम्म। जो वहां से हुई वो बंद हुई, तो थोड़ी वो भी एडिशनल कॉस्ट हुई। लेकिन अब जो बच्चे बाहर से आते हैं, अगर वो दिल्ली रहना चाहें, तो उनके लिए हाईलाइट 5 लाख रुपए का आराम से पड़ जाता है, क्योंकि अब दिल्ली में रहोगे, रेंटेड अकोमोडेशन लोगे, सब कुछ लोगे, तो उनके लिए वो 1 साल। आप अगर दिल्ली से हो तो उतना खर्चा नहीं आता। अगर आप बाहर से दिल्ली आओ तो बेसिकली आप लिमिटेड एस्पेक्ट्स में भी रहो तो 20 से 25 हजार महीना खर्चा आ ही जाता है। बिल्कुल। आप रूम भी लोगे तो 10-12 हजार से कम कोई रूम नहीं है, एक नॉर्मल रूम भी। प्लस हाँ। आपका ट्रैवल एक्सपेंस 25 हजार महीना आई बिलीव आराम से आ जाता है। बिल्कुल। तो 25 हजार मतलब एज तीन एन लाख रुपए इंटर्न आपको। हमारा 20-21,000 पड़ जाता था, तो वंस यू यू नो वो नीड्स ग्रो होते जाती हैं। तो हम जैसे 25,000 मैं बेसिक मान लेता हूँ, 20 to 25,000। तो 25,000 के साथ तो 3 लाख रुपए की एडिशनल कॉस्ट है, 1.5 लाख रुपए ये हुआ, तो आई वुड से 4.5 से 5 लाख रुपए की एडिशनल एलएलएम पड़ जाती है 1 साल की। ओके।
And how was the curriculum? How was your experience there? वेरी हार्ड, वेरी रिगरस, वेरी Okay. ड्रेनिंग। बिकॉज 9 मंथ्स में खत्म कर रहे हैं, सो आई बिलीव कि बहुत रश कर रहे होंगे वो हर चीज में। 2 साल का कोर्स उन्होंने 9 महीने में किया है। हम्म। फैकल्टीज वर एक्सपर्ट। आई वुड से कि फैकल्टीज थी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो हमारे टीचर्स थे वो छोड़ के जा चुके हैं। एट माई टाइम देयर वर 5 to 6 टीचर्स। शिव कुमार सर यूज टू टीचर्स। अब तो मेरे को सब्जेक्ट भी ध्यान नहीं आ रहे यार। अब तो मेरे को सब्जेक्ट, legal research, and Jyoti Dogra ma'am used to teach us GPCL and criminal jurisprudence। अनुराग सर थे, वो नेशनल सिक्योरिटी पढ़ाते थे एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे। मनोज सर थे हमारे डायरेक्टर। तो हम्म। पिछले 2024 के अंदर सारी जो फैकल्टीज थी वो चेंज हो चुकी है, जा चुकी हैं। तो इस टाइम पे आईएलआई के अंदर उतनी अच्छी फैकल्टी अभी नहीं अवेलेबल है। बट हम्म। आईएलआई का ब्रांड नेम है। बट उस टाइम पे क्या होता था, वो टोटली एकेडमिक था। अब एकेडमिक्स के अंदर आई वॉज फ्रॉम अ लिटिगेशन बैकग्राउंड में, 4 साल लिटिगेशन माइंडसेट से एकेडमिक में आया। तो मेरे को एक कल्चरल शिफ्ट लगा, हम्म। टोटली अलग दुनिया मेरे लिए। तो ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम रही। लेकिन जिसने एकेडमिक्स करना है उसके लिए आई जन्नत है। बेस्ट स्टूडेंट प्लेस फॉर दैट। बेस्ट लाइब्रेरी आई की, वहाँ पे आप बैठो, रिसर्च करो, जो भी करो। इट इज हम्म। अ प्लेस सुटेड एडमिशंस बेसिकली। ग्रेट। And do people pursue LLM from IIL even after like होता है ना, बहुत लोग डबल मास्टर्स ट्रिपल मास्टर्स भी करते हैं. So let's say somebody who did not give an interest entrance for IIL this year is pursuing an LLM from MIT or some other private law college, and then they want to experience the atmosphere of IIL. Is it worthy? नो बेनिफिट। Okay. आप अगर एक बार एलएलएम कर ली, देखो अगर आपने एलएलएम करी है बिल्कुल ही कहीं, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जब बिल्कुल एफिलिएटेड नहीं है, तो कोई नाम नहीं, नाम के लिए कर लिए, तो आप आओ। लेकिन इफ यू हैव डन इट फ्रॉम अ ग्रेट यूनिवर्सिटी लाइक एलएल, आपने एमआईटी से करी है, या फिर आपने जिंदल से करी है, या फिर आपने डीयू से करी है, दैट डू नॉट कम टू आईएलएल। They already have a brand name, na DUMET. They already have JGLS, so yeah. Okay, great. So what are the, like, looking back, what are few things which you wish you knew before entering litigation? Or if I could rephrase it, what are some things which a fresh graduate entering into litigation should have in mind? तो मैंने सबसे बड़ी गलती करी है जो आपको शेयर करना चाहूँ, आई डिड अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप इन माई लॉ फैकल्टी डेज। आई वाज कंफ्यूज, मुझे नहीं पता था उस टाइम मैंने लिटिगेशन ही करना है, अपना फैमिली बिजनेस परस्यू करना है, मुझे नहीं पता था। Hmm. बहुत सी चीजें मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में भी चल रही होती है जिनके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो ना। तो So, आई वाज कंफ्यूज एट दैट टाइम। बट राइट नाउ विद गॉड्स ग्रेस मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। hmm. तो मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी है रश्मि की, मैंने उस टाइम पे इंटर्नशिप्स नहीं करी। अगर शायद मैंने उस टाइम पे इंटर्नशिप्स करी होती तो बेसिकली काम ज्यादा आता है ना आता उसका फर्क नहीं पड़ता, मेरी कनेक्शन बिल्डिंग ज्यादा अच्छी है, मेरे सीनियर्स का ज्यादा अच्छे कनेक्शन हो जाते हैं, Hmm. थोड़ा जल्दी आता है। तो आई मिस दोज अपॉर्चुनिटीज। तो जिसको भी अगर लॉ करनी है, लिटिगेशन करनी है, वो दबा के इंटर्नशिप्स करे, रच के इंटर्नशिप्स करे, जितनी कर सकता है उतनी करे। आई वुड Hmm. सजेस्ट वन थिंग। एंड सेकंड थिंग व्हिच आई वुड सजेस्ट, कि लिटिगेशन के अंदर आने से पहले जो मैंने गलती करी वो ये था कि मैं शायद, देखो हमारे टाइम पे कोविड भी आ गया, मैं Hmm. आपको बताऊं, 2 साल कोविड के टाइम पे भी चले गए। अगर कोविड ना आया होता तो हमारी सिचुएशंस काफी अलग होती। बिल्कुल. तो मैं बोलूंगा कि मतलब बस एक यही गलती जो मेरे को रियलाइज होती है कि मैंने इंटर्नशिप्स कम करी, जो मेरे को शायद ज्यादा करनी चाहिए। Right. So anyone who wants to enter into litigation must start with basically once you स्टार्ट विद end, ट्राई नोट टाइम्स। yeah. So when you are entering into the profession after your 5 years law, people should recognize in the court. They should know कि हाँ ये है, ये काफी टाइम से आ रहे हैं, या फिर मतलब you, they should know you by your face. देखो वो 5 साल के एलएलएम के बाद, एलएलबी के बाद नहीं आएगी, उसके लिए आपको 5 साल की लिटिगेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि आप स्कूल से आ रहे हो, आप एक तरह से इंटर्न हो, तो आप अपीयर भी नहीं हो सकते अच्छे से। हम्म. लेकिन जब आप मैटर हैंडल करोगे, क्रॉस करोगे, आपकी आर्ग्यूमेंट स्किल्स कैसी हैं वो आपको जब एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका, तभी आप कर पाओगे। तो आप जब वो एनरोल हो गए पहचानने बात, लगते हैं, मतलब आप 3-4 महीने कंटिन्यू कोर्ट जाओ, आपके सीनियर के साथ घूमो, आप लोग पहचानने पहचानने लग लगते जाते हैं. हैं। बिल्कुल पहचानने लग जाते हैं। आप अपीयर हो रहे हो जज के सामने, एक ही जज के आगे आप डेली डेली अपीयर हो रहे हो, वो उसको पहचानने लग जाएगा। हम्म. आपकी फेस वैल्यू बनेगी। राइट.
तभी मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है, लेकिन अब जो सेकंड जनरेशन लॉयर्स हैं, अब हम्म। सेकंड इसके अंदर भी सेकंड जनरेशन लॉयर हो, थर्ड जनरेशन लॉयर हो, 10th जनरेशन लॉयर हो, अगर आप में स्किल नहीं है आप डुबा दोगे। हम्म। अगर आप में स्किल्स है तो आप बना लोगे, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ दुकान, ये दुकान नहीं है कि आप जाके बैठ गए, माल बेचना है, पैसा आ रहा है। ये आपका स्किल्ड बेस्ड प्रोफेशन है। सर बट अगर एक आप हेड स्टार्ट तो मिलता है ना, अगर सेकेंड जनरेशन थर्ड अच्छा जनरेशन। साथ मिलता है, क्लाइंट्स बने होते हैं, आप इन्वायरमेंट होता है, ये पुश जरूर मिलता है। दे हम्म। आर एडवांटेजेस, नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट। बट राइट। अल्टीमेटली योर स्किल मैटर्स, आप उसको सर्वाइव कर पाओगे इन्वायरमेंट को, तभी आप आगे जा पाओगे। ट्रू। 100%. Sir, lastly, what advice would you give? Okay, internships is one. And what other things that we as students are doing wrong, or the advice which you would like to give to students who are looking to make a career in litigation? कि जो आप लॉ स्कूल में पढ़ रहे हो और जो Hmm. लिटिगेशन के अंदर है, ये दोनों बहुत अलग है। जो लॉ स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, लिटिगेशन एक बहुत अलग चलती है। तो टेक एज मच एज प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एक चीज जो इंटर्नशिप से आएगा। Hmm. स्टार्ट ट्राई टू जॉइन गुड सीनियर्स, अच्छे सीनियर्स के साथ ज्वाइन करो। स्टार्टिंग के 2 3 4 साल अच्छे से मेहनत करो, अच्छे सीनियर्स को ज्वाइन करो। 2 3 4 साल के बाद जब आपको लगता है आपको काम आ गया, आपके पास सोर्सेज है, सब कुछ है, देन ट्राई टू गेट इंडिपेंडेंट एज सुन एज पॉसिबल। Hmm. जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट हो जाओ। सर वो इंडिपेंडेंट होने से पहले भी एक एंजाइटी, एक डर होता होगा ना कि क्या हम हैंडल कर पाएंगे, क्या केसेस आएंगे। बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि आप एक ट्रैप भी हो जाता है। लेट्स अज्यूम आप जॉब में कितना अर्न कर रहे हो, आप आज लेट्स से आपकी 20,000 की जॉब लगी, वो हम्म। बढ़ते 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 50,000 की जॉब लग गई, तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। जैसा कि फिर मैंने एक बात स्टार्टिंग में बोली थी हाँ। कि सेम ऑफिसर गोज का विद। मतलब, अब क्या है कि आपकी अपनी नेटवर्किंग कैसी है। अब होता क्या है कि अगर आप 10 15 हज़ार रुपए के अंदर जॉब कर रहे हो, चैम्बर प्रैक्टिस में इतना ही मिलता है, हम्म। ट्रैवल एक्सपेंस इतना, आपको महीने में एक ब्रीफ भी मिल गया, उतने में आराम से अर्न कर लो। हम्म। नो डाउट 20 25 दिन खाली बैठना पड़ेगा, हम भी हफ्ता हफ्ता खाली बैठते हैं स्ट्रेचर पे आके भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस जो 5 7 दिन आप खाली बैठते हो, उस दिन आप क्लाइंट्स मेकअप करो, क्लाइंट्स के साथ कंसल्टेंट्स करो, अपने आप को स्किल डेवलपमेंट करो, पढ़ाई करो, नई चीजें करने को, 100 चीजें हैं करने को। हम्म। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको टाइम बहुत होता है, आप स्किल काफी एनहेंस कर सकते हो। Right, so it is better to get independent as soon as possible. बेसिक सीख लो काम, आप ट्रायल कोर्ट सीख गए, थोड़ा बहुत हाई कोर्ट का एक्सपोजर आ गया, गेट इंडिपेंडेंट। Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your insights and experiences. And I'm sure प्रॉब्लम, this will help a lot of students. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू Thank and you. your classmates, your batchmates. I hope you all gonna succeed and all, you all gonna do whatever you want to do in your career. आप सब अच्छे से succeed कर पाएंगे, अच्छी जगह पहुंचेंगे आप सब। Thank you so very much, sir. Much needed at this point of time when we are really soon to graduate. Thank you, sir. तो उसके बाद हार्ड वर्क स्टार्ट असली होगा। True, true.